morning, dear students and my dear friends. Welcome back. In this video, we are going to discuss about the problem of excess demand. As we are doing the chapter problem of excess demand and deficient demand, earlier we have done a part of it, that is unemployment, full employment, underemployment equilibrium. Now we are moving to the next topic, that is the problem of excess demand. Let's start. What is problem of excess demand? So it's a situation when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment level in the economy. So when aggregate demand is more than aggregate supply, जब इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए जितनी डिमांड चाहिए उससे ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. So the equation says that AD is greater than AS, AD is greater than AS corresponding to full employment level. Dear students, these words are very important. Corresponding to full employment level, ये words बहुत important है, इनको याद definition में लिखना ज़रूरी है. So that is called situation of excess demand. Simply when AD is greater than AS corresponding to full employment level. जितना फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना है इकोनॉमी में, उस सिचुएशन पे जब एडी ग्रेटर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, देन इट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. नाउ कम्स द इफेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड के इफेक्ट्स क्या होते हैं? एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज इन्फ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशन. Excess demand leads to creation of inflationary gap in the economy. So what is inflationary gap? Let's understand. What is inflationary gap? When actual, now in the last chapter we have done the words that is planned aggregate demand and planned aggregate supply. Now in this, when we are discussing the problem of excess demand and deficient demand, then we have to consider two things, that is actual demand and planned demand. Actual aggregate demand, planned aggregate demand. Actual aggregate supply, planned aggregate supply. Actual savings, planned savings. Actual investment, planned investment. So now what we are doing, we are comparing the ex ante and ex post. ये वर्ड्स हमने सीखे थे लास्ट चैप्टर में. एक्स एंटी मीन्स प्लान्ड and ex post means actual. So for determining the excess problem of excess demand and problem of deficient demand, we are doing a comparison between the actual aggregate demand and planned aggregate demand. So what is inflationary gap? It's a gap, it's a difference which arises when actual aggregate demand is more than the planned aggregate demand required to maintain full employment level. इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए जितना एग्रीगेट डिमांड चाहिए, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे ज़्यादा हो जाता है, देन अ गैप अराइजेस, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो इन दिस स्लाइड देयर इज अ डायग्राम. AS इज द एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री लाइन. Then AD, the red line, is the planned aggregate demand. Is it clear? So in order to maintain the economy in full employment level, we have to produce OM level of output, or the economy will be at full employment equilibrium. It will be at point E. Is it clear? At point E it will be in equilibrium. So what is happening? But the actual aggregate demand is more than the planned aggregate demand. So this dotted line, a parallel line is there, a parallel dotted line is there above the AD, that is called actual aggregate demand. तो planned किया गया था कुछ और जबकि actual aggregate demand उससे ज़्यादा हो गई है. So look at the actual aggregate demand is BM, B and M, BM, whereas planned aggregate demand is EM. Planned aggregate demand is EM. So what is happening? A gap has been arised, and that gap is actual aggregate demand minus planned aggregate demand, that is BM minus EM, that is BE. So BE is the inflationary gap.
और सिंपल वर्ड्स में अगर एग्रीगेट हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड 500 यूनिट्स है, इकॉनमी को सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इकॉनमी को अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट में मेंटेन करना है तो हमें प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है 500 यूनिट्स की डिमांड होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, बट द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज 800 यूनिट्स। सो इट मीन्स 300 यूनिट्स का गैप आ रहा है, यानी लोगों ने एक्चुअली में कितना एग्रीगेट डिमांड कर दिया, कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लान कर लिया, 800 यूनिट्स का, लेकिन जबकि इकॉनमी में कितने अवेलेबल है 500 यूनिट्स। तो यानी इकॉनमी में क्या हो गया, एक इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। अब आप कहेंगे कोई बात नहीं, जहां पे एएस और एक्चुअल एडी इक्वल हो रहा है वहां पे इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे भी इक्वल हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे भी तो आ सकते हैं, हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं कि 300 जो गैप आ रहा है उसके लिए हम प्रोडक्शन बढ़ा, नहीं, हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इकॉनमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है। प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज मोर देन OM यूनिट्स बिकॉज द इकॉनमी इज ऑलरेडी इन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दैट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द प्रीवियस वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट समझा था फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है। तो अब अगर इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, यानी डिमांड 800 यूनिट्स की है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड 800 यूनिट्स की है, जबकि प्लान हमने किया है, प्रोडक्शन किया 500 यूनिट्स की। So what is happening? A gap is being arises that is called inflationary gap. So what is inflationary gap? When actual aggregate demand is more than the planned aggregate demand or aggregate demand required to maintain full employment in the economy, that gap is called inflationary gap. So now comes discuss the effects of the excess demand. And the first effect is inflation. We have already discussed that inflationary gap will be there. So it means inflation will be there. What is inflation? Inflation means when the prices of goods and services starts increasing at very higher rate. देखिए एक बात क्लियर कर ली, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना, रेट, वी आर कंसर्न अबाउट द रेट, एट व्हाट रेट द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। When the prices are increasing at very high rate, then it is called inflation. Deflation also means increasing in prices but not at higher rate. तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों का मतलब प्राइसेस का बढ़ना होता है, लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस बहुत हाई रेट से बढ़ रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में प्राइसेस इतने हाई रेट से नहीं बढ़ रहे होते हैं। Now comes what is inflation. So what will happen in the previous there is a gap of 300 units. Actual demand is more than the planned demand. So what will happen? The pressure of aggregate demand will come on existing stock of goods and services. It's a situation of unfulfilled demand. ये अनफुलफिल्ड डिमांड की सिचुएशन है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि इकॉनमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है। सो द होल प्रेशर ऑफ excess aggregate demand will come on prices. The prices will start increasing. The prices will start increasing. So the first effect of excess demand is that the economy will witness inflation. There will be no change in output. There will be no change in employment because the economy is already in full employment equilibrium. Now comes the second. The second comes the static real GDP. Now the production of goods and services cannot be increased. The GDP will remain the same. We have done the two concepts, real GDP and nominal GDP. Nominal GDP which is estimated at current market prices. So what is happening? Because prices are increasing, so GDP, nominal GDP is increasing, but in real sense the quantity of goods and services produced is not increasing, it is same. तो हमारे 500 यूनिट्स है, 500 यूनिट्स ही हमने बनाए हैं, लेकिन उनके प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है? नहीं, हमारी सिर्फ नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, रियल जीडीपी उतनी है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस की थी वो उतनी है। तो द रियल जीडीपी विल रिमेन स्टेटिक, ओनली द नॉमिनल जीडीपी विल इंक्रीज. So this is the second effect, that there will be increase in nominal GDP,
मार्केट प्राइसेस के बढ़ने की वजह से मार्केट वैल्यू जीडीपी की बढ़ेगी। एक कॉमोडिटी है जिसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो हमारी जीडीपी, एक ही यूनिट बनाई है, एक पेन बनाया हमने, आज उसका मार्केट प्राइस 5 है, कल उसका 10 हो रहा है, तो प्रोडक्शन तो सिर्फ एक ही पेन की हुई है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो सेम इफेक्ट विल बी ऑन जीडीपी। जीडीपी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़ नहीं रही है, यानी रियल जीडीपी सेम है, लेकिन मार्केट प्राइसेस के बढ़ने की वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज वेज प्राइस स्पाइरल। व्हाट इज वेज प्राइस स्पाइरल? एज वी नो दैट द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ excess demand is inflation. The prices are increasing. So as prices are increasing, what will happen? The cost of living will increase. As the prices are increasing, so labor will demand more wages. जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो लेबर है वो वर्कर्स हैं वो हाई राइज इन वेजेस की डिमांड करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। चीज़ें महंगी होने की वजह से सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मनी की ज़रूरत है, सो लेबर विल डिमांड मोर वेजेस। एंड विद इंक्रीज इन वेजेस व्हाट विल हैपन? जैसे ही वेजेस बढ़ेंगी तो सबसे पहले प्राइस बढ़े, प्राइस के बढ़ने से फिर वेजेस बढ़ाई गई, फिर वेजेस के बढ़ने की वजह से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगे। सो इट मीन्स द राइजिंग प्राइसेस आर कैचिंग द वेजेस एंड वेजेस आर कैचिंग द प्राइसेस। तो एक तरह से आप देखिए ये स्लाइड में कि जो राइजिंग प्राइस है वो चेज कर रहा है राइजिंग वेजेस को, और जो राइजिंग वेजेस चेज कर रही है राइजिंग प्राइसेस को। दिस इज कॉल्ड वेज प्राइस स्पाइरल। एंड देन कम्स द नेक्स्ट, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमने एग्जाम्पल रेफर किया था कि सपोज 500 यूनिट से हमारा प्लान एग्रीगेट डिमांड, बट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज 800, सो द प्रोड्यूसर विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन फुल एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड है, इस वजह से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। सो देयर विल बी द लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड। जो 300 यूनिट्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रोड्यूसर्स, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। सो द प्रोड्यूसर विल सफर द लॉस बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल the demand, the aggregate demand, the actual aggregate demand. So there are 4 effects of excess demand. The first is that the economy will witness inflation. Second, there will be no increase in the real GDP, but the nominal GDP will increase. The third comes wage price spiral, and the fourth comes, that is loss of profits. That is the effect of excess demand. Now we will discuss the causes of excess demand. The causes of excess demand, what are the factors which leads to excess situation of excess demand? So causes are based on the components of aggregate demand. If we revise the concept of aggregate demand, there were 4 components: consumption, private consumption expenditure, private investment expenditure, government investment expenditure, net export. So these are also responsible, these factors are responsible for the excess demand also. अब excess demand में हो क्या रहा है? excess demand में क्या है? money circulation बहुत ज़्यादा है, people are demanding more goods and services because they have money, उनके पास ज़्यादा पैसा है, so they want to spend that money. सो इट मीन्स जो रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है एक्सेस डिमांड का होने का, वो है इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई का बढ़ना इकोनॉमी के अंदर। सो अब देखते हैं कि ये मनी सप्लाई को बढ़ाने के रीजंस क्या हैं। सो लेट्स डिस्कस। द फर्स्ट इज इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड वाज सी। The equation of aggregate demand is C plus I plus G X minus M. So let's discuss the first. What is happening during excess demand? People are spending more. They are saving less. It means MPC is very high, whereas MPS is very low. And one of the reason is demonstration effect also. कि नेबर ने कार ली है तो हम भी कार लेंगे, नेबर ने लैपटॉप लिया है तो हम भी नया लैपटॉप लेंगे. सो दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. सो
under demonstration effect also the people are spending more money, they are demanding more goods and services. तो यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, सबके माइंड में चल रहा है कि मुझे कार खरीदनी है, किसी के दिमाग में चल रहा है मुझे घर खरीदना है, किसी के मुझे दिमाग में चल रहा है कि लैपटॉप खरीदना है. So that is because of increase in MPC. MPC is very high, people are spending more, they are saving less, वो सेविंग कम कर रहे हैं और खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं. इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज़्यादा है इकॉनमी में. नाउ कम्स द नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर, दैट इज आई. जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन द मार्केट. मार्केट क्या हुई है, बुलिश मार्केट हुई हुई है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की. सो द बिजनेसमैन वांट्स टू अर्न profits, they want to earn a good return on their investment, so they are ready to invest in the projects. So they are investing in the projects में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है. बिजनेस इज रन बाय द सेंटिमेंट्स ओनली. इफ देयर इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स द बिजनेसमैन आर रेडी टू इन्वेस्ट अमाउंट इन द प्रोजेक्ट्स. तो क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, तो उसको अर्न करने के लिए, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, पोटेंशियल प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए, so they are ready to invest money in the market. So it means high private investment, increase in private investment expenditure is also the reason. Now comes the third, that is increase in government expenditure, that is G. Government is also spending more. गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है. अब गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है, गवर्नमेंट स्पेंड्स इन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है. द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स, डैम्स, in setting of industries, and in the similar way it is spending a lot of money in welfare programs, poverty alleviation programs में भी खूब पैसा लगाया जा रहा है. तो उससे क्या हो रहा है, there is a flow of money from government to the public. तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी उतना ही ज़्यादा मनी का फ्लो होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट से फ्लो होगा मनी का टू द पब्लिक, पब्लिक के पास उतना ही पैसा आएगा जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकॉनमी. एंड जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, सो दे विल डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, सो द लेवल ऑफ एटी विल इंक्रीज. नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. वैसे तो x माइनस एम था कॉम्पोनेंट, लेकिन हम यहाँ सेपरेटली पढ़ेंगे एट ए टाइम. पहले हम एक्सपोर्ट को पढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. सो देयर आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स के रेट्स हाई हैं, whereas in domestic economy the prices of goods are low. यानी क्या हो गया, अगर हम कंपेयर करें डोमेस्टिक इकॉनमी एंड इंटरनेशनल इकॉनमी, तो इंटरनेशनल इकॉनमी में ज़्यादा प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के एज कम्पेयर टू इंडियन गुड्स और द डोमेस्टिक गुड्स. तो डोमेस्टिक गुड्स सस्ते पड़ रहे हैं, दे आर चीपर एज कम्पेयर टू द अदर मार्केट. सो व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज demanding the Indian goods or domestic goods, so it leads to increase in export. और जब exports बढ़ेंगे, so there will be more increase, there will be more inflow of foreign exchange, or it will lead to increase in money supply in the economy. And then comes the decrease in taxes, and is related to, before discussing the decrease in taxes, let's discuss about import के बारे में भी पढ़ लेते हैं. import का लेवल क्या है, import कम हो गए हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स हाई है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हाई हैं गुड्स एंड सर्विसेज के एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक. तो इंपोर्ट्स कम हो गए हैं, वेयरएज एक्सपोर्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से इकॉनमी में मनी सर्कुलेशन बढ़ रहा है. सो इट विल लीड टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज डिक्रीज इन टैक्सेस. सो टैक्सेस समहाउ, डायरेक्ट टैक्सेस आर समहाउ लेस, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस समहाउ गवर्नमेंट ने कम टैक्सेस कर रखे हैं. तो जब टैक्सेस कम होंगे, सपोज इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो जब इनकम टैक्स कम होंगे तो उससे क्या होगा, लोगों की ज़्यादा इनकम बचेगी. फॉर एग्जांपल अगर टैक्स रेट 30 है
और इनकम 100 रुपी है, इसका मतलब है वी हैव 70 रुपी टू स्पेंड। ओके, लेट्स डिक्रीज द टैक्स। पहले 30 था, गवर्नमेंट ने 10% कर दिया, इट मीन्स नाउ द पर्सन हैज 90 रुपी टू स्पेंड। पहले वो 30 रुपी टैक्स दे रहा था गवर्नमेंट को, अब उसे 10 रुपी देने हैं, तो अब उसके पास कितनी इनकम बच रही है, 90 रुपी बच रही है। सो इट मीन्स ज़्यादा इनकम का होने का मतलब है वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, दे कैन डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। सो टैक्सेस कम है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हों या फिर डायरेक्ट टैक्सेस हों, तो टैक्सेस कम होने की वजह से द पीपल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम and that's why they are demanding more goods and services. I hope आपको meaning of excess demand, inflationary gap, effects of excess demand and causes of excess demand समझ में आया होगा।